Hello students. Today I am going to discuss about the topic molecular basis of inheritance. Do you know what is inheritance? Inheritance means the transmission of character. What is inheritance? Inheritance means the transmission of character from parents to offsprings or from one generation to another. What is inheritance? It is nothing but transmission of character. Transmission of character from one generation to another. ओके तो कैसे ट्रांसमिट होता है बाद में करना है, ठीक है. Then now our basic aim is the characters are inherited. The characters are inherited through molecules. The characters are inherited through molecules, and our components is they are also known as biomolecules. And these are the main component found in all the living organisms. For example, what are the biomolecules? For example, carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acids. These are the various biomolecules that present inside our living body. Okay, but here the character are transmitted by which type of biomolecules? Here the characters or the inheritance takes place through nucleic acids. Here our main constituent is nucleic acid, through which the characters are transmitted from one generation to another. The main aspects of nucleic acids are going to describe below. Okay, then what is nucleic acids? The main biomolecules is nucleic acids. देखो होता क्या है, फर्स्ट हमको जानना पड़ेगा ये न्यूक्लिक एसिड चीज है क्या, किसको बनाया हुआ है, किसको लेकर ये न्यूक्लिक एसिड बनाया हुआ है. दिस इज द मेन कंपोनेंट. हमको जानना पड़ेगा द न्यूक्लिक एसिड्स आर मेड अप ऑफ व्हिच टाइप ऑफ कंपोनेंट, किसको किसको लेके ये न्यूक्लिक एसिड बनाया हुआ है. ठीक है, हमको ये समझना पड़ेगा. ओके, देखो क्या होता है क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल nucleic acids are termed as nuclein. The first term of nucleic acid is nuclein, which was given by Frederick Mister. Given by Frederick Mister, a Swiss biochemist. Okay. The nucleic acid was first termed as nuclein, given by Frederick Mister. Okay, later on, it was termed as nucleic acid. Later on, it was termed as nuclein. बाद में इसको न्यूक्लिक एसिड नाम से रखा गया. क्यों, किसने रखा इसको? न्यूक्लिक एसिड टर्म किसने दिया? The term nuclein was changed into nucleic acids by Altman. Later on, क्या हुआ? This Altman studied this nuclein component clearly, okay, thoroughly, and named it as nucleic acid. किसने दिया था? Altman. बाद में क्या हुआ? Altman properly study किया किसको? न्यूक्लिन को. ठीक है, आफ्टर द स्टडी he found that the nuclein contain some acidic nature. The nuclein contain some acidic nature. ठीक है, and due to this presence of acidic nature he termed it as nucleic acid. Because of presence of acidic nature in nuclein, he termed the nuclein as nucleic acids, and it is termed by what? It is termed by whom? It is termed by Altman. Okay, the first nuclein was given by Mister. Okay, and later on it was named as nucleic acids by Altman.
हमको अभी जानना पड़ेगा ये न्यूक्लिक एसिड्स होता कहाँ पे है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स ऑलवेज रिमेंबर ये दो तरह के होते हैं. न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज नोन एज DNA, another one is called as the RNA. There are two types of nucleic acids present inside our body. One is known as DNA, another one is called RNA. Okay, DNA का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड. और आरएनए का मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड. One is called deoxyribonucleic acids and the other one is called ribose nucleic acids. Then what is the basic difference between the DNA and the RNA? One having the deoxyribonucleic acid and another one is called as the ribose nucleic acid. ठीक है, what are the basic difference we are going to discuss later in our chapter. Okay, here now we are going to focus on this. What is nucleic acids? Okay, अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में. देखो, न्यूक्लिक एसिड्स. ओके, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स? देखो, न्यूक्लिक एसिड्स आर मेड अप ऑफ, न्यूक्लिक एसिड्स आर मेड अप ऑफ so many monomeric unit. Monomeric means they are the polymers. ओके, मोनोमेरिक मीन्स बहुत सारे मोनोमर को लेके बनाया हुआ होता है. क्या? बहुत सारे मोनोमर को लेके क्या बनाया होता है? न्यूक्लिक एसिड. किसका मोनोमर किसका है? दे आर द मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लिक एसिड्स आर मेड अप ऑफ सो मेनी मोनोमेरिक यूनिट्स एंड दैट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड्स. दैट मीन्स न्यूक्लिक एसिड्स आर द polymers of what? Nucleotides. Nucleic acids are the polymers of nucleotides. Okay, and these are also known as, nucleotides are also known as building blocks of nucleic acids. Building blocks of nucleic acids. Okay, what is nucleotide? Nucleotides are also known as building blocks of nucleic acids. Okay, they are also known as polymers. Nucleic acids are also known as polymers of nucleotide. Nucleotides are also known as building blocks of nucleic acids. Okay, or not? Okay, then we will going to discuss about nucleotides. and nucleotide होता क्या है, क्या क्या होता है न्यूक्लियोटाइड में. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड इन जनरल consist of three components. In general, it consists of three components. Three components of nucleotide. What are the three components of nucleotide? Number one, it contain a sugar. First, क्या होता है? एक sugar होता है. It contain phosphate group and also contain nitrogenous bases. Okay, it contain a sugar, it contain a phosphate group, it contain nitrogenous bases. They are the three components of nucleotides. Okay, what is sugar? First देखना पड़ेगा हमको ये sugar क्या है. Sugar in general, sugar is made up of 5 carbon. Okay, in our body, sugar means what? Sugar means glucose. ठीक है कि नहीं? ग्लूकोज बोलते हैं तो which contain how many number of carbons? It contain 6 number of carbons, 6 carbon atom. That's why our sugar is known as hexose. Okay, our sugar is made up of 6 carbon atom. That's why it is known as hexose sugar. But here the sugar present is contain 5 carbon. That's why our here this sugar component, पता चल रहा है कि नहीं, इसमें जो सुगर होता है वो 5 कार्बन एटम्स को लेके बनाया होता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ कंटेनिंग 5 कार्बन इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेंटोज सुगर. क्या बोलते हैं उसको? इसको बोलते हैं पेंटोज सुगर, बिकॉज ये 5 कार्बन को लेके बनाया होता है. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पेंटोज सुगर. एंड दिस पेंटोज सुगर्स
are of two types. This is of two types. One is called ribose sugar. Another one is known as deoxyribose sugar. Okay, one is called ribose sugar, another one is called deoxyribose sugar. Pentose sugar is classified into two types. One is known as ribose sugar, another one is called as deoxyribose sugar. Okay, what is ribose and what is deoxyribose? देखो, general formula of carbohydrate जो होता है, these are generally made up of what? These are the form of carbohydrates. Okay, these two are the form of carbohydrates. Sugar is nothing but the carbohydrate, as you all know that sugars are nothing but carbohydrate. What is the general formula of carbohydrate? It is nothing but CnH2n whole n. ठीक है? If n equal to 6, then put the n, C6H12O6, and this is nothing but our glucose. Okay, then what should be the formula of ribose? राइबोस का फॉर्मूला क्या होगा? इसके हिसाब से करो, क्या होगा देखो, since it contain carbon number what 5, it also contain the carbon number what 5. Okay, then what is the formula? पुट करो n equal to कितना, n equal to 5, then कितना होगा C5 yes H2 into 5 कितना होगा 10 S10O5. Okay, this is the general formula of ribose sugar, C5 S10O5. This is the formula of what? Ribose sugar. ठीक है, then come to your deoxyribose. Next term is deoxy. D means the word here, D means remove. D means remove or deficient. Okay, what? Oxy means oxygen. Oxy means oxygen. Then ribose sugar से, okay, राइबोस शुगर से एक ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. ठीक है, देयर इज अ डेफिशिएंट ऑफ वन ऑक्सीजन फ्रॉम द राइबोस शुगर एंड दैट इज नोन एज डीऑक्सीराइबोस. रिमूवल ऑफ वन ऑक्सीजन फ्रॉम राइबोस शुगर, दैट इज नोन एज डीऑक्सीराइबोस. क्या होगा देखो, C5 ओके H10 ये कांस्टेंट है, कार्बन फिक्स्ड है, हाइड्रोजन भी फिक्स्ड है, ओनली द चेंजेबल आइटम इज ऑक्सीजन. एक ऑक्सीजन एटम कम है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, O5 की जगह क्या हो जाएगा, O4. ओके, डेफिशिएंट ऑफ वन ऑक्सीजन एटम और रिमूवल ऑफ वन ऑक्सीजन एटम फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम राइबोस शुगर. दैट्स व्हाई नोन एज डीऑक्सीराइबोस. रिमूवल ऑफ वन ऑक्सीजन फ्रॉम राइबोस शुगर. राइबोस शुगर से एक ऑक्सीजन को हम निकाल दें तो जो बन जाएगा, जिसको बोलते हैं क्या, deoxyribose. ठीक है, that's why it is formula C5H10O4. this is the formula of what, deoxyribose sugar. ठीक है, देखो अभी the ribose sugar found in which type of nucleic acids, RNA, and the deoxyribose sugar found in which type of nucleic acids, DNA. The nucleic acids which contain RNA, which contain what, the nucleic acid which contain ribose sugar. The nucleic acid which contain ribose sugar are called RNA, and the nucleic acid which contain deoxyribose sugar are called DNA. Nucleic acid having the ribose sugar are called RNA, and nucleic acid having the deoxyribose sugars are called DNA. ठीक है, the basic difference between the DNA and RNA is on the basis of their sugar present. If the sugar is ribose, then it is called RNA, and if the sugar is deoxyribose, then it is called what, DNA. Okay, very good. Now we are going to through phosphate group. अभी हमको देखना पड़ेगा ये phosphate क्या है. ठीक है बेटा, देखो phosphate क्या होता है. phosphate बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होता है. ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हूं मैं, phosphate ग्रुप जो लिखा हुआ है कि नहीं, यहाँ पे मैं क्या लिखा हूं, मैं लिखा हूं फॉस्फेट ग्रुप. फॉस्फेट ग्रुप का मतलब क्या है, ये ग्रुपिंग फॉर्म में होता है. ओके, हियर फॉस्फेट इज जनरली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड. हियर द फॉस्फेट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड. फर्स्ट नेम न्यूक्लिक एसिड का हम क्या दिए थे, इसको बोल रहे थे न्यूक्लिन. लेटर ऑन क्या हुआ, ऑल्टमैन आ गए. ऑल्टमैन क्या बोले, नहीं भैया इसका नाम क्या है, न्यूक्लिक एसिड. क्यों है, बिकॉज
he found some acidic property. ठीक है, Altman found some acidic property inside the nucleus. That's why he termed the nuclein as nucleic acids. Okay, क्यों बना? देखो इस न्यूक्लियन में ये एसिडिक नेचर कहां से आया? This acidic nature is present due to the occurrence of phosphoric acid. Due to the presence of this phosphoric acid, nuclein are named as nucleic acids. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है? Why nucleic acids are acidic in nature? Because it contain phosphoric acid. Due to the presence of phosphoric acid, nuclein are termed as nucleic acid. Okay, जो कि स्टडी किया था किसने? ऑल्टमैन ने. ओके, देन ये जो फॉस्फेट ग्रुप हो गया, ठीक है, it is found in the form of phosphoric acid. What is the formula of phosphoric acid? It is termed as S3PO4. This is the formula of phosphoric acid. Okay, and because of presence of phosphoric acid, the DNA or the nucleic acids are acidic in nature. Clear? This is all about what? Sugar and phosphate group. Now we are going to discuss about the what? Nitrogenous bases. अभी हम डिस्कशन करेंगे क्या? नाइट्रोजिनस बेसिस. ये नाइट्रोजिनस बेसिस क्या है? नाइट्रोजिनस बेसिस मींस द बेसिस containing the nitrogen. Basic element is it contain the nitrogen. Basic element is it contain nitrogen. ठीक है? It is classified into two types. Nitrogenous bases is classified into two types. One is known as purine bases. Purines bases. Another one is called as pyrimidines bases. Purines and pyrimidines. There are two types of nitrogenous bases. One is known as purines bases. Another one is called pyrimidine bases. Okay. Purines means there are two components. One is known as adenine. Another one is known as guanine. These are the two purine bases. What are those? Adenine and guanine. दो purine bases क्या क्या? One is called, एक को बोलते हैं adenine और दूसरे को बोलते हैं guanine. These are the two purine bases. There are also pyrimidine bases. What are those? Cytosine, then uracil, then thiamine. These are the three pyrimidine bases. What are those? One is known as cytosine. एक को बोलते हैं cytosine, दूसरे को बोलते हैं uracil, तीसरे को बोलते हैं thiamine. Okay, अभी हमको देखना पड़ेगा ये डीएनए में कौन कौन सा रहते हैं और आरएनए में कौन कौन सा रहते हैं. ठीक है, देखो डीएनए और आरएनए, देखो बेसिक डिफरेंस क्या है अभी समझना पड़ेगा. ठीक है, देखो डीएनए फर्स्ट, व्हाट इज नोन एज डीएनए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड. पता है सबको इसका फुल फॉर्म क्या है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड्स, राइबोस न्यूक्लिक एसिड. ओके, देन नंबर 2, देखो इसमें शुगर क्या होता है? डीएनए contain which type of sugar? DNA contain deoxyribose sugar. It contain the sugar deoxyribose sugar. इसका शुगर क्या है? शुगर इज राइबोस. Sugar is ribose. Here sugar is deoxyribose. Here sugar is ribose. Next one, नाइट्रोजनस बेस. इसमें नाइट्रोजनस बेस क्या होता है डीएनए में? देखो एडेनाइन होता है, गुआनाइन होता है, ए एंड जी फिक्स्ड. ये डीएनए में भी होते हैं और आरएनए में भी होते हैं, दोनों में प्यूरिन बेसेस होते हैं. ठीक है, डीएनए में और आरएनए में बोथ एडेनाइन एंड गुआनाइन पाए जाते हैं. ठीक है, देन ए एंड जी आर फिक्स्ड, ओनली द चेंजेबल आइटम इज, देखो डीएनए में होता है साइटोसिन एंड थायमिन. डीएनए में क्या होता है? साइटोसिन एंड थायमिन. Here also in RNA, nitrogenous basis is adenine, then guanine, then cytosine. These three are fixed. Only thiamine is replaced by, इसको हम replaced करेंगे. Thiamine is replaced by what? Uracil. It contain uracil as the nitrogenous base. Okay. DNA में कौन सा बेस पाया जाता है? DNA में थायमिन होता है और आरएनए में थायमिन के बदले क्या पाया जाता है? यूरासिल पाया जाता है. तो डीएनए कंटेन द थायमिन बेसिस एंड आरएनए कंटेन द यूरासिल बेसिस. ओके,
This is the basic difference. Later on, we will going to discuss details about the basic difference between the DNA and RNA, but these are the general difference which differentiate both the DNA and RNA. Okay. In general, sugar क्या होता है, nitrogenous base क्या होता है. Always remember that these purine bases are double ring structure. These are double ring structure of carbon and nitrogen. जो कार्बन और नाइट्रोजन होता है वो दो रिंग के बनाया हुआ होता है. ठीक है. These are the double ring structure of purines. ठीक है. Double ring structure and pyrimidines are single ring structure. That means these are more complex than this one. This is quite simple. These are the simplest structure and these are the complex structure than pyrimidines. Okay? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छी तरह से. वेरी गुड. देखो प्यूरिन क्या होता है, these are the double ring structure and pyrimidine क्या होता है, these are the single ring structure. प्यूरिन में क्या कौन से रहते हैं, एडेनाइन एंड गुआनाइन. पायरिमाइड में कौन कौन रहते हैं, साइटोसाइन, यूरासिल एंड थायमिन. डीएनए में क्या क्या पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन एंड थायमिन. आरएनए में क्या पाया जाता है, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन एंड यूरासिल. जस्ट इन दोनों को रिप्लेस करना है. डीएनए में आता है थायमिन, आरएनए में आता है यूरासिल. बस इतना ही लिखना है, इतना ही अंदर घुसाना है, बस बात बन गई. ठीक है. देखो तो दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट, न्यूक्लियोटाइड्स व्हिच आर नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. अब हम देखेंगे यार दूसरा टर्म है, बहुत ही खतरनाक टर्म, दूसरा टर्म है. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड. अब हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड्स तो पता चल गया क्या है. ठीक है, टाइड के बाद अब क्या आएगा, साइड आएगा. ठीक है, we'll all discuss about nucleotide, then we are going to discuss about nucleoside. nucleoside होता क्या है. ठीक है, अब हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोटाइड्स पता चल गया, अच्छी तरह से समझ में आया कि नहीं. तो अब देखो हम देखेंगे व्हाट न्यूक्लियोसाइड क्या होता है. न्यूक्लियोटाइड्स तो हो गया, अभी हम देखेंगे न्यूक्लियोसाइड. ठीक है, देखो पहले न्यूक्लियोसाइड को जाने से उसके बाद में हमको ये देखना पड़ेगा न्यूक्लियोटाइड्स कैसा रहता है. न्यूक्लियोटाइड्स कैसा, देखो कंपेयर करेंगे, इजी से समझ में आ जाएगा. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, देखो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड देखेंगे क्या क्या था, बोलो क्या क्या था इसमें. शुगर था, देन नाइट्रोजनस बेस था, देन फॉस्फेट ग्रुप था. ये तीनों को मिला के न्यूक्लियोटाइड्स बना था. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स. वन इज नोन एज सुगर, अनदर वन इज कॉल्ड नाइट्रोजनस बेस, अनदर वन इज कॉल्ड फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है कि नहीं. न्यूक्लियोसाइड्स में क्या क्या होता है, इट इज जनरली मेड अप ऑफ 2 बेसिक कंपोनेंट्स. न्यूक्लियोटाइड्स में 3 कंपोनेंट्स था, न्यूक्लियोसाइड में 2 कंपोनेंट्स आएगा. क्या क्या है वो, वन इज कॉल्ड सुगर एंड अनदर वन इज नोन एज नाइट्रोजनस बेसेस. नाइट्रोजनस बेसेस, दिस इज the form of nucleoside. Nucleoside means it is the combination of sugar and nitrogenous bases. sugar और nitrogenous base को मिला के क्या बनता है, nucleoside. If we combine the sugar with the nitrogenous bases, then what will form? Then it will form nucleoside. The combination of sugar plus nitrogenous base gives rise to nucleoside. Okay, just remember nucleotides minus phosphate. Nucleotides minus phosphate group gives rise to what? Nucleoside. समझ में आ रहा है. तो न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेट ग्रुप को निकाल दो. किसको निकालेंगे, न्यूक्लियोटाइड से केवल हम फॉस्फेट ग्रुप को निकाल देंगे, बाकी जो रह जाएगा उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे. सिंपल है भैया, बहुत ही सिंपल है. समझ में आ रहा है कि नहीं. जस्ट न्यूक्लियोटाइड है था, न्यूक्लियोटाइड अच्छी तरह से समझ में आ गया क्या क्या होता है भैया. नहीं, एक शुगर होता है, एक बेस होता है और एक फॉस्फेट होता है. बस फॉस्फेट को निकाल दो, फॉस्फेट को यहां से निकाल दो, बाकी जो रह गया उसको क्या बोलते हैं, सिंपल, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड. एग्जाम में क्या आता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स. एग्जाम में क्या आएगा, एक न्यूक्लियोसाइड का एग्जांपल बताओ. ठीक है, 4 ऑप्शन होगा, तुमको उसमें बताना है, चूज करना है.
विच वन इज द न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड कौन सा है। ठीक है, कैसे हम पता करेंगे कि इसका न्यूक्लियोसाइड का एग्जांपल ये होगा। ठीक है, अभी देखेंगे व्हाट शुड बी द एग्जांपल ऑफ ए न्यूक्लियोसाइड। देखो कैसा होता है। सपोज देखो क्या क्या होता है, एक शुगर, ठीक है, प्लस ये क्या होगा, बेस, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, इनको मिला दो, क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड से फिर हम क्या मिलाएंगे, फॉस्फोरिक एसिड, क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है कि नहीं, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट ग्रुप गिव्स राइज टू व्हाट, न्यूक्लियोटाइड। अभी पता चला हमको कि न्यूक्लियोसाइड में अगर फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेट ग्रुप माइनस करते थे, क्या बनता था, न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। सिंपल, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड गिव्स राइज टू न्यूक्लियोटाइड्स। सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, देखो शुगर, एक तो शुगर लेते हैं, राइबोस शुगर। शुगर क्या है, आइदर राइबोस और डिऑक्सी राइबोस। हम सिंपल शुगर लेंगे, क्या होगा उसका नाम, राइबोस शुगर, प्लस और एक तो बेस लेंगे जो कोई भी हो। सपोज हम ले जाते हैं क्या, एडेनाइन। ठीक है, राइबोज प्लस एडेनाइन क्या होगा, देखो इनको मिला के क्या बन जाएगा, बोलो, राइबोज प्लस एडेनाइन। बहुत सारे बच्चे बहुत तरह तरह के जवाब देते हैं। ठीक है, नहीं सर ये तो एडी राइबोज हो जाएगा, नहीं सर ये तो सर राइबोज एडेनाइन होगा। नहीं होगा ऐसा भैया, ऐसा हो सकता है ना, हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, अच्छी तरह से इसको मिला के एक कॉमन टर्म बनाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं कि व्हाट, न्यूक्लियोसाइड। क्या होगा, देखो सिंपल, एडेनोसाइन। क्या होगा ये, वेरी गुड, एडेनोसाइन। राइबोस शुगर प्लस एडेनाइन गिव्स राइज टू व्हाट, एडेनोसाइन बन गया। एडेनोसाइन इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, न्यूक्लियोसाइड। एक न्यूक्लियोसाइड का एग्जांपल बताओ, क्या होगा, वेरी गुड, एडेनोसाइन। सिंपल, जिसमें कि बेस कौन सा है, एडेनाइन, शुगर कौन सा है, राइबोस। ठीक है, सपोज दिस एडेनोसाइन में हम मिला दें क्या, फॉस्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड, एडेनोसाइन प्लस फॉस्फोरिक एसिड, क्या बन जाएगा, वेरी गुड, ये बन गया व्हाट। अभी इसको क्या बोलेंगे, ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स का एग्जांपल। एग्जाम में वो भी आता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोटाइड, गिव एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, देखो एडिनोसाइन तो हो गया, न्यूक्लियोसाइड हमको पता चल गया। पहले हम न्यूक्लियोसाइड बताते हैं, फिर हम जाएंगे कहां पे, न्यूक्लियोटाइड्स पे। ठीक है, देखो देन राइबोस शुगर प्लस गुआनाइन, ये क्या होगा, इसके हिसाब से एडेनाइन एंड गुआनाइन बोथ आर सेम, बोथ आर बिलोंग्स टू सेम nitrogenous group, that is called purine group. Okay, that belongs to purine bases. Purine bases दोनों सेम है, that's why नेमिंग फॉर्मेट भी क्या होगा, दोनों का ही सेम होगा। ठीक है, उसका एडेनोसाइन है, इसको हिसाब से करो, क्या होगा, गुआनोसाइन। इसका क्या होगा, गुआनोसाइन। तो राइबोस शुगर प्लस गुआनाइन गिव्स राइज टू व्हाट, गुआनोसाइन। राइबोस शुगर से अगर हम गुआनाइन को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, गुआनोसाइन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड का एग्जांपल है, एडेनोसाइन, गुआनोसाइन। ठीक है, अब देखेंगे राइबोस प्लस साइटोसाइन, राइबोस प्लस साइटोसाइन। अभी बताओ इसका नाम क्या होगा, ये अभी थोड़ा डिफिकल्ट होगा। नहीं, अभी तो हम साइन बसा नहीं सकते ना, साइन ऑलरेडी यहाँ पे है, तो अब साइन का जमाना जा चुका है। ठीक है, अब साइन नहीं आएगा मेरे भैया, साइन का जमाना ऑलरेडी गॉन। ठीक है, अब क्या होगा, देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, फॉर्मेट चेंज। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा साइटिडाइन। क्या होगा, इट इज कॉल्ड साइटिडाइन। क्या बोलते हैं उसको, राइबोस प्लस साइटोसाइन गिव्स राइज टू साइटिडाइन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोसाइड। ठीक है कि नहीं, ठीक है, तो ये थोड़ा चेंजेबल आइटम्स है, थोड़ा चेंजेबल है, थोड़ा। ठीक है, इसको अगर समझ में आ गया तो बाकी सब सिंपल। ओके, ये थोड़ा ध्यान में रख के याद करना है, बस हो जाएगा, बाकी सब सिंपल है। ठीक है, देन राइबोस प्लस यूरासिल, क्या होगा, इसके हिसाब से यूरिडाइन। क्या होगा, क्या बोलते हैं उसको,
यूरिडाइन, ठीक है। राइबोज प्लस यूरासिल गिव्स राइज टू यूरिडाइन, राइबोज प्लस साइटोसिन गिव्स राइज टू साइटिडाइन। ओके, अब हम देखना है न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। न्यूक्लियोसाइड हमको पता चल गया, नेमिंग क्या है। देन न्यूक्लियोसाइड से फिर क्या मिलाएंगे इसको, फॉस्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड गिव्स राइज टू व्हाट, गिव्स राइज टू न्यूक्लियोटाइड। अभी हमको देखना है न्यूक्लियोटाइड का एग्जांपल क्या क्या है, ठीक है। देखो, एडिनोसाइन प्लस फॉस्फोरिक एसिड क्या होगा, एडिनोसाइन प्लस फॉस्फोरिक एसिड क्या होगा, बोलो। वेरी गुड। देखो इसका नाम क्या होगा, एडिनाइलिक एसिड। क्या होगा इसका नाम, एडिनाइलिक एसिड। ओके, देन ग्वानोसाइन प्लस फॉस्फोरिक एसिड क्या होगा, खुद बोलो। ग्वानोसाइन प्लस फॉस्फोरिक एसिड, इसके हिसाब से, बिकॉज देखो दिस टू आर प्यूरिन बेसेस, ठीक है, एंड दिस टू आर पाइरिमिडिन बेसेस। both the purine bases have format and both the pyrimidine bases also have same naming format। ये दोनों का फॉर्मेट सेम है और ये दोनों का फॉर्मेट दोनों का सेम, ठीक है। तो जब भी हम नाम लिखेंगे हमको ये याद में रखना है whether they are belongs to purine bases और pyrimidine bases, ठीक है। उसके हिसाब से हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। देखो अभी क्या होगा, ग्वानोसाइन प्लस फॉस्फोरिक एसिड क्या होगा इसका नाम, बोलो। दिस इज नोन एज guanylic acid, this is known as guanylic acid। okay, guanosine plus phosphoric acid gives rise to guanylic acid, and this is the example of a nucleotide where the base is guanine, sugar is ribose। okay, then cytidine plus phosphoric acid ये क्या होगा, आप लोग बोलो। अभी तुम्हारी बारी। साइटिडाइन है फॉस्फोरिक एसिड, तो क्या हो जाएगा, साइटिडाइलिक एसिड। क्या हो जाएगा, साइटिडाइलिक एसिड, ठीक है। साइटिडाइलिक, इसके हिसाब से ये क्या होगा, बोलो। यूरिडाइन प्लस फॉस्फोरिक एसिड गिव्स राइज टू यूरिडाइलिक एसिड। ये क्या बन जाएगा, यूरिडाइलिक एसिड, ठीक है। दिस इज योर फॉर्मेट ऑफ नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। इस तरह से हम न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स का नेमिंग करते हैं। और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, एक एग्जांपल बताओ न्यूक्लियोसाइड का, जिसमें शुगर होगा क्या, राइबोज, और बेस होगा क्या, साइटोसाइन। शुगर इज राइबोज, बेस इज साइटोसाइन, एंड देन व्हाट वुड बी द न्यूक्लियोसाइड, देन न्यूक्लियोसाइड विल बी व्हाट, साइटिडाइन। सिंपल। अगर शुगर है क्या, राइबोज, बेस है क्या, साइटोसाइन, देन न्यूक्लियोसाइड क्या हो जाएगा, साइटिडाइन। देन अगर हम न्यूक्लियोटाइड लिखेंगे तो क्या होगा, साइटिडाइलिक एसिड। सिंपल, ठीक है। These are the examples of nucleoside and nucleotides। ओके, यहाँ पे हम सभी में क्या लिए, राइबोज शुगर लिए। सपोज शुगर कौन सा हो गया, सपोज शुगर इज डीऑक्सीराइबोज। राइबोज की जगह क्वेश्चन में क्या आ गया, डीऑक्सीराइबोज। अगर शुगर होगा तो क्या होगा उसका नाम, डीऑक्सीराइबोज है तो सभी में क्या बन जाएगा, डीऑक्सी ऐड कर देना है, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज डीऑक्सी एडिनोसाइन क्या हो जाएगा, अगर राइबोज डीऑक्सी है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, देन योर न्यूक्लियोसाइड विल बी डीऑक्सी एडिनोसाइन। क्या बन जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसाइन। फिक्स्ड। यहाँ पे केवल इसके आगे डीऑक्सी को ऐड करना है, ठीक है। एडिनोसाइन के आगे क्या ऐड करना है हमको, सिंपल फॉर्म, ओनली ऐड द डीऑक्सी बिफोर द एडिनोसाइन। ये न्यूक्लियोसाइड के नेम से पहले डीऑक्सी को ऐड कर दो। अगर शुगर क्या है, अगर शुगर डीऑक्सीराइबोज है, इफ शुगर इज डीऑक्सीराइबोज then please add before the adenosine, before the nucleoside, deoxyadenosine, then phosphoric acid, deoxyadenilic acid। fixed। इतना ही करना है बस, इसके आगे डीऑक्सी लिख देना है, ठीक है। अगर डीऑक्सी हो गया उसका काम फिनिश्ड। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, टाइप्स कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, देन न्यूक्लियोसाइड एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होता है। Then in the next class we will going through कितने तरह के डीएनए होते हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर को कैसा होता है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए एंड आरएनए, उसके बारे में डिटेल्स जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।